सर आपने हमें मौका दिया, आपने सो नाइस। सो मैं देखिए मैं मिलते रहेंगे। जब मैं IRA में PhD कर रहा था तो देखिए पूरा भारत मेरा हो गया है। सो नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं कर्नाटक का हूँ, कन्नड़ वाला हूँ, ऐसा नहीं है सर। आज बिकॉज या तो सारे हिंदुस्तान की वही है। और देखिए मैं हैदराबाद में 20 साल काम किया, नियम में भी पढ़ाया हूँ और मैनेज में भी पढ़ाता रहता हूँ और MBA स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। मैं सब बोलूँगा, आप आग्रह कर दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। जब आप इशारा कर देंगे मैं करता हूँ। बस महल was both input company, output company. आप just see this particular slide. Reliance Fresh, Sufal, okay, Cook Foods, Bank. So there is a linkage of both the credit, the input, the output, and the TCS software company, okay, TAFE with the machinery. All linkages were developed, and now when all these linkages have been developed, please see that how the the profits have started increasing in the FPO. I just want to tell you about this. See, in 2018, the credit linkages was only about 29.5 crores. I am talking this on a cumulative. But once when the intervention of the Thornton Limited and the SFAC, the Small Farmer Agri Consortium took place, the credit linkages has increased to 572 crores. Today that means the small cat, जो छोटी बिल्ली थी, वो बड़ी शेरनी या शेर बनने जा रही है. So this is how the business is going to increase. In a single 1 year time, okay, they develop market linkages, they develop credit linkages, capacity building, policy reforms were in place. So this is about Madhya Pradesh, West Bengal and Karnataka. I told you that these were the 3 states where this pilot project was in place, and they have done it. Now, so quickly going ahead. So obviously, what did the ABPU do? Similarly, what is the ABPUs of the 67 FPOs are going to do now? See, they will have a business plan. I told you एक विस्तृत परियोजना report लिखेंगे, a detailed project report. So what are the IT, technology, credit access, market linkage and schemes, which is going to be worked before? I told you the market feasibility, the technological feasibility, the economic feasibility and the social acceptability, studying. See, nobody is going to go to an exam, sir. See, please let me tell you, you and me might have taken a dozen exams in our life. If somebody goes to the examination without preparing, best is he doesn't take the exam at all. I am of that opinion. See, when you are definitely not going to clear the exam, why are you going to the exam at all? Be there. See, if an FPO does not have a plan, if an FPO cannot venture and become from a choti billi to bada sher or sherni, then I think you better drop the FPO, close it, don't open it. Don't open an FPO just you wanted to open. Everybody wants to get married, everybody wants to, take up a job and just do some namka vaste ka job. Don't do that. So this is what the ABPU worked in the Thornton Limited, and gap is not that gap. They identify the good agriculture practices for each and every FPOs, and the decision making, capacity building, okay, board of directors, CEOs and FPOs to build business planning and management skills. See, many of us, when I was in IIM, okay, one of my professors, he's Saral Mukherjee, okay. Even Professor Vasant Gandhi was my professor. So they used to tell, suppose, I'll give an example of what is a real decision making strategy. See, suppose you are going on a road and you have a very mild accident. And what happens when your car hits a small motorbike? Obviously the RTO, the Regional Transport Office rule says, even if the two-wheeler is at mistake, but the mistake is only on the big vehicle, that is the car. So I had many accidents like that. Even though there was no mistake from me, there was a two-wheeler guy who hit me from the back. And then obviously when I had put my car on a traffic signal,
आई एम टेलिंग यू दिस डिसीजन मेकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ FPO शुड डू डिसीजन मेकिंग. इसके विचार में मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको. सो व्हेन अ व्हीकल हैज हिट यू फ्रॉम द बैक, whose mistake it is his mistake. Then when I refer the RTO rule, it says whether it is his mistake or your mistake. Okay, but the onus is on the big vehicle. So मान लो कि say that you are a big professor and a small drunkard in the street is going to pick up a fight. So who is going to be supported as per the law? Not the big professor like you who is working in Punjab Agriculture University, Ludhiana. You are a big man. So you are a level 14 officer getting about 3 lakhs pay. So obviously the entire public and the law is going to support only the drunkard. Please understand the law. So what should be your decision making? See, suppose I ask this Lopamudra or I ask Rayar Saab, it can happen, or Vaishali, whoever is here. So suppose a situation like this comes, what is the best strategy? When somebody is fighting and they are coming to hit you, or when you know that the law is not on your side, that decision is to keep quiet. क्यों ना वो दारूबाज वो गाली दे आपको, let him start scolding you. आप इतना बड़ा आदमी हो, you are a bad fellow. He will tell all those things. आप मुझे चकाचक 4,000 रुपए दे दीजिए. So this is what that fellow told, and very silently I gave 4,000 rupees and ended the fight. See, otherwise who will go to the court, and then the court finally will say that no. V.K. Jara was running a KEV 100 car and it's a big car, and the motorbike fellow is having a bullet motorcycle. Therefore, V.K. Jara has to spend 4,000 even on that day. Court will dismiss my petition. Therefore, the decision making is for an FPO. If I am not able to perform, I don't do it. You do something else. See, in America, my father used to say how the American strategize. Try. If you don't succeed, try something else. So that is what FPO has to do. अरे कोशिश करो यार, कि एक ही आइडिया पर अड़े रहोगे, नहीं रहना है. अरे अलग अलग आइडिया सोचो, कैसे निकालना है. अरे हम एक बिल में फंस गए हैं. Suppose I am a snake, it is called the Ishavasyopanishad. Aimushakanyaya. I will tell you this particular story. आपको पता होगा, आपके बुजुर्गों ने इस कहानी को बताए होंगे. क्या किया था, एक सांप एक बिल में अटक गई. ओके, इट वाज ट्रैप्ड इन अ नेट. सो सांप कुड नॉट कम आउट ऑफ द बिल. वेरी अनफॉर्चुनेट. वहां सामने एक क्या चूहा जा रहा था. मूशिक का मतलब है संस्कृत में चूहा वॉज गोइंग आउटसाइड. सो ये सांप को पता हो गया कि इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ द बिल. कुछ स्ट्रैटेजी तो करना है. तो क्या स्ट्रैटेजी करना है? इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द नेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रैप्ड इन अ नेट. एंड फाइनली दैट स्नेक बहुत चालाकी से बोली. इसको बोलते हैं अयमूषक न्याय. ये भागवत के स्कंद पुराण में आती है. सो दिस इज द पहले अध्याय में आती है, आप भी पढ़िए. सो फाइनली इट मेड अ स्ट्रैटेजी. इन्होंने चूहा को बुलाया. ओ डॉक्टर चूहा, थोड़ा इधर आओ यार. लेकिन अरे हमको इतना प्रेम से सांप बुला रहे, तो क्या है भाई, क्या रणनीति है इसकी? सो चूहा का तो बुद्धि बहुत कम थी और सांप का बुद्धि ज्यादा है. ये पंचतंत्र की कहानी में भी बहुत माहिर है. सो देन चूहा केम वेरी नियर दी सांप. इसे बोले सांप जी, क्या हाल चाल है, क्या हमको हमारी याद कैसे होना हुआ? सो सांप ने बोला, देखो भाई, हम ये बिल में अटक गए हैं और आने की कुछ संभावना ही नहीं है. और हमने सुना था कि चूहे के दांत बहुत तगड़े होते हैं, बहुत शार्प भी होती है. अरे थोड़ा हमको ये बिल से निकाल दो कि हम बाहर आने के बाद थोड़ा मजे से हम भी जिएंगे. चूहा और सांप का. ओके, हम डिस्को करेंगे यार, डिस्को करेंगे. वी विल डांस. सो रेन इज फॉलिंग, धमा धम धम, लाइक दैट हम गाना गाएंगे. सो चूहा ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया यार. तो क्या करेगा? सो चूहा ने फटाफटा काट लिया बिल को और सांप को बाहर निकाला. और वहां क्या थी, एक सांप विलन बन गई. जाते जाते साले चूहे को भक्षण करके चली गई. सो दिस इज कॉल्ड अयमूषक न्याय. सो लाइक दैट व्हेन एफपीओ अगर फंस गई है, वेदर इट इज इन द
परिचय के स्टेज में, whether it's the introduction stage or the growth stage or the maturity stage or the decline stage in the product life cycle, इसको एक रणनीति निकालना होगा फॉर एवरीथिंग, फाइटिंग, बीटिंग, जो आजकल हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं ना, हर हीरो एक दो बंदूक निकाल के आता है. सो they are all the Shatrughan Sinha wala old movies. Okay, then Amitabh Bachchan also used to say in many of his movies, रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं, बट नाम है शहनशाह, like that. आजकल की पिक्चर्स देखो, स्पेशली आयुष्मान खुराना. आई थिंक आयुष्मान खुराना इज अ पंजाबी, वेरी ब्यूटीफुल. मैंने उसका एक पिक्चर देखा था, बाला बाला बोल के, सुपर. आयुष्मान खुराना इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर. वो रणनीति से काम करता है. सी ही इज नॉट वेरी मैचो और ही इज नॉट दैट. बट आजकल के हिंदी पिक्चर्स में बहुत रणनीति आई है, नए नए सोच, नई दिशा आई है. देखिए डॉक्टर साहब, 3 विषय, सोच, समझदारी और रणनीति और दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एन एफपीओ. सो आगे जाएंगे डॉक्टर साहब. मार्केट लिंकेजेस उन्होंने की. सो किन किन से उन्होंने एफपीओ से मार्केट लिंकेज की? डोमेस्टिक ट्रेडर से, रिटेलर से और कॉर्पोरेट कंपनियां जैसे वेकूल है और रिलायंस फ्रेश और सफल आजकल बहुत पंजाब और इधर उधर बहुत चल रही है. अग्रो प्रोसेसर इंडस्ट्रीज. देखिए रिसेंटली एक किसान ने मुझे फ़ोन किया था, जब मैं ये अर्का व्यापार का मोबाइल ऐप किया. ही हैज़ ग्रोन मैरीगोल्ड. अरे यार, दैट फूल मैरीगोल्ड फ्लावर, 10 टन्स ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर. साला कोई लाश के ऊपर डालेगा क्या, या कोई पूजा करेगा क्या? कितना फूल बेच सकता है? सो वो किसान रो रहा था, मुझे बोला सर मेरे पास 10 टन की आपकी IHR की वेराइटियाँ है and I don't know what to do with it. I said, Ullu ke patte, first of all, marigold is only grown as an intercrop. Nobody grows it as a pure crop. तुम उल्लू के पट्टे हो, why did you grow 10 tons of marigold? बाद में I had one of my friends, Dr. Chandramouli. So Dr. Chandramouli Saab is a processor of marigold. He prepares biopesticides from marigold. So मैंने उसको संपर्क किया, लिंक किया. दैट इज कॉल्ड लिंकिंग फार्मर विथ मार्केट. अगर मेरा 10 टन मैरीगोल्ड के लिए डिमांड नहीं है तो व्हाई डिड आई प्रोड्यूस इट? ओके, सी इफ इट इज अ मैंगो, a crop which stays a crop of mango, people say after 45 years you have to replant the mango tree. The life of a mango tree is about 45 years. The life of a coconut tree says, that's why we say Shatamanam Bhavati, 100 years. After 100 years, even coconut plant trees have to be removed. A mango tree has to be removed after 45 years. This is what IHR says. We have been telling it from time immemorial. But I see mango orchards which are more than 80, 90 years. See, we have calculated in mango and all that, the S-shaped curve or the decline starts after 45 years. So therefore, FP1A, they are also linked with the agro processor, whether it is marigold or whatever, then exporter, export market. For example, today gherkins and some of the commodities are 100% export. See, one of my friends, Dr. Nagegoda, is a gherkin exporter. He is just here only in Gauri Bidnoor. I had visited him. एक वीडियो भी बनाया था मैंने. सी गरकिन्स एंड जो अचार बनती है गरकिन से, जैसे कि पंचरंगी अचार, गरकिन का अचार बहुत डिमांड है यूरोप में. साउरक्रॉट, खाली उसको नमक के ब्राइन सोल्यूशन में डालते हैं. ओ माय गॉड, इट इज सोल्ड लाइक हॉट केक्स. सो एक्सपोर्ट मार्केट को टैप करो. कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, यू डेवलप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड MOU बेस्ड फार्मिंग. ना बाजार में खड़े होके और धूप में क्या खड़े हो जाओ. सो नाउ, सो दोनों अग्री इनपुट एंड आउटपुट एंटरप्राइजेस पे उन्होंने लिंक किया, और लिंक करने के बाद 2018-20 में उसकी आमदनी बढ़ी है. लाखों में माला माल हो गए लोग. और आजकल FPOs इनपुट भी बेचने लगे हैं, नॉट जस्ट आउटपुट, नॉट ओनली डायरी प्रोडक्ट्स. देयर इज अ संगम डायरी इन आंध्र प्रदेश. आई विजिटेड इट रिसेंटली. उसके पहले डॉक्टर साहब हेरिटेज डायरी और वो क्या है भाई, विजया डायरी बहुत काम कर रही थी. आजकल संगम डायरी की जमाना आई है आंध्र प्रदेश में. क्यों आई है? बिकॉज संगम डायरी इज एन FPO. इट इज नॉट ए कंपनी, इट नॉट ए फैक्ट्री. विजया डायरी इज नॉट ए कंपनी. विजया डायरी इज ए बिग फैक्ट्री. एक छोटी सी FPO संगम डायरी बोल के, वो भी चीज, पनीर,
सब कुछ करते हैं वो भी, पूरा माला माल, हाई प्रॉफिट. सो टुडे ऑल दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमर नारायण हॉर्टिकल्चर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये चिंतामणि में है, जिसके लिए IAHR ने काफ़ी उसको प्रशिक्षण और योगदान दी थी. हमने उसका हैंड होल्डिंग की थी. मैं इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मेरा इस प्रवचन को मैं ख़त्म करूँगा. दे आर स्टार्टेड टेलिंग द इनपुट्स ऑफ ऑल द कंपनीज. इट सेल्स इनपुट एज वेल एज आउटपुट. ओके, and they have already linked with people. Profit of the 30 FPO study 4.34 lakh से लेके 97.7 lakh आफ्टर इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का क्या है? ABPU, कृषि व्यापार योजना इकाई, एग्रीकल्चर बिजनेस प्लानिंग यूनिट. ये है क्या? आपके 67 FPOs में ABPU है क्या? होगा या नहीं होगा? मैं और इसके लिए हमारा महल साहब एंड देन ऑल आवर डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन लुधियाना को और भी जोर देना होगा. लेकिन वी हैव अ बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट. व्हाट डू द एक्सटेंशन साइंटिस्ट डू एट IAHR? We also lay out all FLD, OFT and all those chota mota work. But our major work is developing the mobile platform, linking farmers with market, servicing the FPOs, and then how to do horticulture processing, what sort of training we have to give so that the FPO should not suffer. My colleague Dr. Venkat Kumar, he works on fully on FPO. I work on the mobile platform, and my another colleague works on the PHP and MySQL script. They use an E extension model, electronic extension. I work on the M extension model, mobile extension model. So, and there is another company, नई farm bills आने के बाद, how are you going to link the farmer with market? यही research करती रहती है IAHR में. See, otherwise your project, nobody will say that हम पुराने जमाने में एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट कैसे लेते थे? इम्पैक्ट ऑफ अर्का सहन वेराइटी इन फार्मर्स फील्ड, ऐसा प्रोजेक्ट वो मेरा MSc का प्रोजेक्ट था. इवन माई MSc प्रोजेक्ट आई स्टिल रिमेंबर द टाइटल, अडॉप्शन ऑफ लो कास्ट एंड नो कास्ट टेक्नोलॉजीज. देखिए कितना बढ़िया था वो 35 ईयर्स के पहले. अरे व्हाट इज ए नो कास्ट टेक्नोलॉजी? चेंज द डेट ऑफ सोइंग. इट इज नो कास्ट टेक्नोलॉजी, उसके कोई खर्च नहीं होती है. अगर मान लो कि रेन्स आर डिलेड, 15 दिन आपको सोइंग आगे बढ़ाने में बहुत मुनाफे आते, बहुत फायदे हैं. सो डोंट डू सोइंग 15 डेज बिफोर. देखो लोग बोल रहे थे कि 28 को वी विल गेट बारिश, बट आज भी मैं देख रहा हूँ बारिश नहीं आई है. तो व्हाट शुड एज अ फार्मर डू? हार्टिकल्चर का छोड़ो, वो फ्रूट्स एंड पेरेनियल क्रॉप्स तो वो रहती है फील्ड में. अरे वेजिटेबल सब्जियां का बीज लेके आया हूँ, आई विल पोस्टपोन माई सोइंग. दैट्स अ लो कास्ट टेक्नोलॉजी. मैं क्यों सब लेबर सबको बुला के मेरा फिक्सर कास्ट को बढ़ा दूंगा हूँ? आई विल नॉट कॉल. JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम. जब आपको भूख लगती है तब खाओ. ऐसे नहीं कि आपको एक ब्रेकफास्ट 2 खाना खाना ही है. कभी कभी भूख नहीं लगती, कभी कभी 2 घंटे भूख लगती है, 2 बजे ही खाऊंगा मैं. सो दिस इज व्हाट द ABPU डिड, एंड यू सी हाउ दे हैव पुट ऑल द इनपुट एंड आउटपुट इन अ सिंगल प्लेस. ओके, 30 FPOs का क्यूमुलेटिव डाटा, बहुत इनपुट सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ी है, टर्नओवर बढ़ी है, सब कुछ बढ़ोतरी पे पथ पे जा रही है. ये अग्निपथ नहीं है दोस्तों, मित्रों, ये टर्नओवर बढ़ गई है. सो इसीलिए एक कहावत है हिंदी में, चांद या सितारे से मोहब्बत नहीं होती, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं. मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. मित्रों, आपको FPO को हैंड होल्डिंग करना होगा. अगर बिना हैंड होल्डिंग करते क्या गर्दिश के तारों को ढूंढते रहते हो? नहीं, करो काम. डिटेल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निकालो, पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी निकालो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निकालो. यही तो काम करते रहते हैं. कहाँ है वो फार्म एंड होम विजिट? वो पुराना जमाना क्या? आजकल देखो कुलदीप साहब या मैं या कोई भी कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन, मेरा PhD स्टूडेंट्स को भी वही काम दिया. 2 PhD स्टूडेंट्स है मेरा, और एक मेरी स्टूडेंट वो करनाल में काम करती है, वो सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च, उसको भी वही प्रोजेक्ट दिया हूँ. अरे भैया, नॉट ओनली सी वी हैव गॉट रियाज साहब हु इज कम्युनिकेशन डायरेक्टर, नॉट ओनली संवहन क्रिया से नहीं. क्या देखो, कुलदीप साहब विल गाइड अबाउट 2-3 PhD स्टूडेंट्स इन द कमिंग ईयर्स. क्या प्रॉब्लम दोगे? दे दो, भेजो मेरे साथ. कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन मॉडल निकालो भाई, निकालो. बिना छूने से, बिना फार्म एंड होम विजिट के
बिना ग्रुप मीटिंग के, बिना समोसे के, अरे बड़े छंगे बन रहे, अरे वो सब जमाना गए। यू कैन नॉट डू ऑल दैट नाउ। गांव में नहीं घुस सकते आप, पूरा ऐसा जूम में ही चलती है। ऐसा एक्सटेंशन मॉडल निकालोगे क्या, तब आपकी मुनाफा बढ़ती है। दिस इज व्हाट ऑल माई एक्सटेंशन फ्रेंड्स कम हियर एंड कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी आए हैं मौजूद, मैं उससे आग्रह यही करता हूं, खाली संवहन क्रिया करने से तकनीकी नहीं जाती डॉक्टर साहब। आप उसको एक कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन मॉडल पे लेके जाना होगा। वही तो IHR पे हम काम करते हैं और बहुत हम शुक्रगुजार है रियार साहब और पूरे इस नेत्र वृंद को कि हमको आमंत्रण किया है, हमें एक मौका दिया है एक कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन एंड FPOs को कैसे एनर्जाइज किया जाए। मैं ये बुक भी मैं कुलदीप साहब और रियार साहब को मैं देता हूँ, एक PDF बुक है, और कृपया इस सब को ऑल ओवर पार्चमेंट जो 100 लोग हैं, सेंड इट टू देम, लेट देम रीड। सो विदाउट हैंड होल्डिंग, उसके हाथ ना पकड़ने से, हाथों में हाथ। ओके, एक गाना है ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अरे विदाउट हैंड होल्डिंग विच FPO इज गोइंग टू गो अहेड यार। आपको शायद मेरी ये हिंदी गाना समझ में आ रही होगी, बिकॉज एक पिक्चर जुर्म आई थी जिसमें विनोद खन्ना हीरो था, और वो कौन सी थी भाई, माधुरी दीक्षित थी उसमें। सो देयरफॉर तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। अब पकड़ो मेरी हाथ, यू डू हैंड होल्डिंग, टर्नओवर बढ़ती है। मैं ऑलरेडी डेटा दिया हूं। मैं इस क्लास को खाली डेटा से नहीं मेरी अनुभव का मिश्रण भी किया हूं। सो ये पंचरंगी अचार है मित्रों, गरकिन का अचार नहीं। सो क्रेडिट लिंकेजेस भी किया, और बिफोर हैंड होल्डिंग ABPO, यानी बार बार मैं बोल रहा हूं, ये ABPO आपके मन में डाल दीजिए, कृषि व्यापार परियोजना इकाई। देयर शुड बी ABPO। आई थिंक it will be there even with Riyar Saab, it will be there with your director extension, all the KVKs, especially FPOs के अंदर हम एक ABPO को एस्टैब्लिश करना होगा। ABPO is nothing but a think tank। हमारा नीति आयोग नहीं है क्या? नीति आयोग में हमारा रमेश चंद साहब बैठा है, मेरा प्रोफेसर। ओके, पीपल आर सिटिंग एंड थिंकिंग भाई, देयर इज नो प्लानिंग कमीशन नाउ, नीति आयोग, नीति आयोग विल डिसाइड नाउ। बड़ी है। और FPOs देखो, ये अमर नारायण FPO में छोटा छोटा सीड प्रोसेसिंग, सीड पैकिंग ये भी कर रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, FPOs अलग अलग स्टेज में होंगे, कुछ परिचय के स्टेज में होंगे, कुछ पतन के स्टेज में होंगे, कुछ अभिवृद्धि के स्टेज में होंगे, और कुछ स्टैग्नेशन स्टेज में होंगे। सो ग्रोथ स्टेज में क्या है, जब वो संवर्धन स्टेज में है तो लो टू मॉडरेट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ देखो 50 to 60 क्रॉस, ओके, स्कोरिंग दिया है। और क्वाड्रेंट A का क्या है, वेरी लो पोटेंशियल, अभी अभी इसको इंक्यूबेट करना। इंक्यूबेट का मतलब क्या है, ओके, वी आर टू जस्ट लाइक एन एग इज इंक्यूबेटेड इन एन इंक्यूबेटर, हैंड होल्डिंग। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं हम उसको उंगली पकड़ के स्कूल पे चलाते हैं, स्कूल पे चल के वहाँ छोड़ते हैं। मैं भी मेरे बेटी को छोड़ रहा था। सो आजकल वो बड़ी हो गई है, शी इज इन ए ग्रोथ स्टेज, वो अपना निर्णय खुद लेने लगी है। सिमिलरली FPOs also we have become big, they are able to take their own decisions, maturity stage, okay। अब थोड़ा मुनाफा आने लगी है। पहले स्टेज में क्या मुनाफा आती है क्या? See, why are we, for example, if we take our children as FPOs, why are we promoting the FPOs? They may not give results in the first year, they will not give result till their 10th standard, और okay, उसका IIT से भी किया, उसका शादी भी हुआ। When will our children give results? After शादी, हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। I think कुलदीप सिंह साहब मेरे साथ सहमत है कि हम बाल बच्चों को इसलिए पोसते कि हमारे बुढ़ापे में थोड़ा काम है। मैं अभी 57 ईयर का हूँ, जवान हूँ, जैसे आपके महाल साहब ने बताया, और भी है मेरा 4-5 साल सर्विस। देखेंगे जब बुढ़ापे में है, जो FPO या मेरे बच्चे को मैंने पोषण किया, मैं उसको प्रचोदन किया, उत्तेजन किया, दे विल कम एंड स्टार्ट गिविंग दी बेनिफिट्स, एक्सपेंशन स्टेज। सो एनीवे वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। जैसे IIM में आई टोल्ड यू दैट जब कोई हमसे झगड़ा करने चाहता है
तो हमको झगड़ा करना चाहिए और रिवेंज लेना चाहिए। हर हिंदी सिनेमा में क्या करता है, उन्होंने इसको मारा, इन्होंने एक बंदूक लेके उसको भी मारा, यही है ना। हर हिंदी सिनेमा में एक बंदूक होती है और शत्रुघ्न सिन्हा विल टेल हम शेर है, और एक था ना यार वो प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा, हम शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। अरे उल्लू के पट्टे, दे आर नॉट दी रणनीति, वो सब स्ट्रैटेजी नहीं है, वो हिंदी सिनेमा में डायलॉग सुनने के लिए बहुत अच्छी होती है। सो नाउ लुक एट दी फार्मर्स इन्वॉल्व। ये चारों स्टडी में हमने क्या किया था, दी फार्मर्स इन्वॉल्व आफ्टर दी ABPU, कृषि व्यापार परियोजना इकाई ने जब इंटरवेंशन किया, फार्मर्स भी बढ़े, एक्सेप्ट कर्नाटक में बिफोर एंड आफ्टर 10,000 किसान ही थे। टर्नओवर भी बढ़ी है और परसेंटेज इंक्रीज, ये देखिए ना 129%, 136, 139% increase in the income. When you don't increase the income, when you increase your cost, that means your life is very unsustainable. ये राजा महाराजा और सूर्यवंशी राजा क्यों चले गए? Because their lifestyle is very very unsustainable. इतना बड़ा महल आपको रंग लगाने के लिए चली जाती है और लेबरर को पैसा देने में चली जाती है। मुझे रख दे, मुझे रख दे, वो गाना गाने में अच्छा है, बट कितना महल को रंग लगाओगे? देर आर अनसस्टेनेबल मॉडल्स, उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और खाली अमर नारायण FPO के बारे में जो मैं अभी बहुत विस्तृत रूप से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि अमर नारायण हॉर्टिकल्चर FPO जो है IAHR से इसका संवर्धन हुई थी और हमने काफ़ी इसको ट्रेनिंग दी थी। और दिस इज हमारे IAHR के नज़दीक भी है और हमारे दिल के भी बहुत नज़दीक है। और दिस इज बीन सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द मॉडल FPOs। इसका मैं मिसाल दे रहा हूँ और इसकी टर्नओवर भी बड़ी है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और कर्नाटक में बहुत ढेर सारे, आई टोल्ड यू वी हैव अबाउट 159 FPOs, जिसके बारे में के सक्सेस स्टोरी मैंने ये अमर नारायण हॉर्टिकल्चर का लिया हूँ। चिकबल्लापुर यहाँ से ओके एक 30 किलोमीटर दूरी में है और दिस FPO कवर्स अबाउट 18 विलेजेस और 14 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें ढेर सारे फार्मर इंटरेस्ट, फिग माने खाने का नहीं है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप और वुमेन इंटरेस्ट ग्रुप भी मौजूद है। सो 1000 मेंबर्स का किया था। सो दे वर ओनली producing the output fruits, especially Chikballapur area is a full vegetable belt, lot of cabbage and cucumbers. हमारा IAHR का variety अर्का रक्षक टमाटो, they were doing only this. बाद में IAHR लोगों ने बोला अरे भाई खाली आउटपुट क्या दोगे, टमाटर के ऊपर कितने काम करोगे? टमाटर तो हाईली वॉलेटाइल क्रॉप है, 20 पैसे से लेकर 20 रुपए तक 40 रुपए तक जाती है। The range of the variation is very high. That तब हम देखो एक्सटेंशन वाला मैं कितना इकोनॉमिक्स बात करता हूँ। See the demand for agriculture output is highly inelastic. फ्रेश टमाटर कितना खाएंगे यार? एक घर में क्या 1 किलो खाओगे? When you process it only as a sauce or anything, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है and the demand can increase. But when you are going to use fresh vegetable कितना ले सकते हो? मैं ये खास तौर से जो वेजिटेबल का FPO यहाँ मौजूद है इस वेबिनार में, मैं उससे आग्रह कर रहा हूँ अरे भाई व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ प्रोसेसिंग द वेजिटेबल्स? क्या प्लान है भाई आपका वेजिटेबल प्रोसेसिंग में? ओके, यू माइट नॉट हैव एन आइडिया, बट एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग IAHR इज द पैनेशिया फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट यू अप्लाई समथिंग। देन बाद में दे स्टार्टेड टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम APMC, दे स्टार्टेड सेलिंग इनपुट्स आउटपुट्स, ओके, देन दे डेवलप मार्केटिंग लिंकेजेस। वेकुल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, फार्म लिंक। सो आजकल देखिए बैंगलोर में we have got many apps and many direct marketing systems, because कोरोना की वजह से पीपल बाजार नहीं जा पा रहे ना। पुराने जमाने में एक बड़ा थैली लेके लोग सब्जियां लाते थे हर रविवार, एवरी संडे लोगों का वही काम था। सुबह निकलो 6 बजे और वहाँ मंडी में चले जाओ और एक 20-30 किलो का सब्जी लेके आओ एक हफ्ते के लिए। आजकल एक मिनट गैस आई दबा।
सो 20-30 किलो का वो लोग सब्जियां लाते थे। आजकल क्या है, हमेशा मेरी श्रीमती जी भी आग्रह करती रहती है, अरे भाई इतना मत लाओ, हम कहाँ से रखे फ्रिज के अंदर जगह ही नहीं है। सच बात है, मानता हूं उसे। और मैं ये भी बोलता हूं, अरे भाई लॉकडाउन हुई है, किसको पता कि लॉकडाउन कंटिन्यू होगा नहीं होगा, सब्जियां मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसीलिए दैट्स कॉल्ड द थियरी ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, यानी जब हमारी आमदनी बढ़ती है वी एंड अप बाइंग मोर थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इलास्टिसिटी नहीं है, यानी आपका आमदनी ज्यादा बढ़ने से आप 30 किलो टमाटर एक दिन में नहीं खा पाओगे। दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स आल्सो, जब मैं एग्री इनपुट एंड आउटपुट मार्केटिंग एक कोर्स लेता था, अगर मान लो कि हमारा 320 मिलियन टन्स का है, हमारा 650.8 मिलियन हेक्टेयर का जो जमीन है, दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ओके, एंड fertilizer also will increase only when the variety increases, when the variety is changed. Otherwise, even I say that fertilizer demand is highly inelastic. Recently क्या हुआ था, सरकार ने ये सुपर फास्फेट की दाम बढ़ गई, सुपर फास्फेट की दाम बढ़ गई, तो एज पर द इकोनॉमिक्स थियरी, जो भी इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठा है मेरे इस प्रवचन के मंच पर, इस सभा में जो बैठे हैं, मैं इसे आग्रह कर रहा हूं, अरे जस्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर इज गोइंग टू इंक्रीज, वेदर द कंजम्पशन ऑफ द फर्टिलाइजर इज गोइंग टू डिक्रीज? नो, इट इज हाईली इनइलास्टिक। अरे कुछ चीज ऐसा है, इट हैज गॉट हाई इनइलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, वेरी क्रेजी एग्जाम्पल, आप हंसी मजाक कर दीजिए। सपोज द लिकर रेट, दारू की दाम अगर कम होने से डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती? बहुत बढ़ती है। पीपल विल स्टार्ट स्टॉकिंग द दारू। और द रिवर्स इज नॉट ट्रू, अगर दारू की दाम बढ़ जाती है तो क्या परचेस कम होती है? नहीं। अगर मान लो 100 रुपए की दारू 1000 रुपए पे बिके, तो फिर भी लोग 1000 रुपए देके दारू पीने के लिए शौकीन हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मित्रों, please understand the agriculture input and output are highly inelastic. By decreasing or increasing the price, okay, the demand does not increase. Especially agriculture output, जो भी FPO सब्जियों में काम कर रहे हैं, मैं उनसे ये अनुमोदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप खाली सब्जी बेचने से आपकी मुनाफा ज्यादा नहीं होगी, आप उसको वैल्यू एडिशन पे जोर देना होगा। टमाटो प्यूरी बनाओ, टमाटो केचप बनाओ, सॉस बनाओ, कुछ इंटरमीडिएरी स्मॉल प्रोसेसिंग, जिसके लिए ज्यादा तकनीकी की जरूरत नहीं है, ज्यादा तकनीकी नहीं चाहिए। अरे भाई देखो, मेरे पास, मैं अभी अभी एग्जांपल आपको दिया, मेरे घर में तो 20 किलो की आम पड़ी है और 20 किलो भी पक गई है। मैं क्या करना चाहिए? 20 किलो का आम एक ही दिन में मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं उसमें 10 किलो का जूस निकालूंगा, इस लेक्चर के बाद रखूंगा फ्रिज में, कुछ डीप फ्रिज में रखूंगा, जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड सो दैट आई गेट द मुनाफा। दिस इज व्हाट दिस कंपनी आल्सो डिड। देन स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्टियम, लघु कृषक संगठन और कृषि व्यापार परियोजना इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट फॉरगेट इन दिस लेक्चर। सो ए थरो बिजनेस प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड, दे लिंक्ड विद एसबीआई एंड नाब किसान, ओके, जो नाबार्ड की एक क्या है भाई, वो एक मेरा शिष्य था, उसमें नाब फिन में था, नाब किसान में था वो, ओके। सो समुन्नति फाइनेंस भी आजकल कर रहे थे, लिंक्ड द क्रेडिट आल्सो। प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने एक्वायर किया, एक 3600 स्क्वायर फीट का लीज लिया लैंड को, बैंगलोर और ये कड़पा हाईवे में, ये है होस्कोटे के बाद आती है। होस्कोटे एक गांव है जहां मेरी बचपन गुजारी थी और दादाजी वहाँ हाई स्कूल टीचर थे उस जमाने में। सो दे हैव आल्सो कंस्ट्रक्टेड अ वेजिटेबल पैकेज। ये सब एक 30 किलोमीटर की दूरी में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू बैंगलोर, हाईली क्लोज टू बैंगलोर, एंड दिस पर्टिकुलर FPO हैज टेकन एडवांटेज। मान लीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उन्होंने क्या क्या किया, वॉशिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, थोड़ा पैकिंग भी करने लगा।
सो कोल्ड स्टोरेज यूनिट बढ़ाया 5 मेट्रिक टन्स का, रिटेल बिजनेस भी शुरू किया, और हमारे IAHR का एक मोबाइल शॉप है, अर्का ट्राईसाइकिल बोलते हैं, जो सोलर एनर्जी पे काम करती है। मैं इस प्रवचन के बाद आपको अर्का ट्राईसाइकिल जो हमारे IAHR ने विकसित की है, मैं उसका मिसाल और फोटोज भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दे ऑल्सो ट्राइड सम B2B मार्केटिंग। उसका टर्नओवर बड़ी, देखो 47.6 लाख से लेके 78.48 लाख की टर्नओवर बड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2 साल में 387.58 लाख का टर्नओवर बढ़ गई इसका। सो देयरफॉर मित्रों, लिंकिंग द क्रेडिट, लिंकिंग द ट्रेनिंग, लिंकिंग द टेक्नोलॉजी, ये सब किसकी पुष्टि और समर्थन करती है? ये सब टेक्निकल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की पुष्टि देती है, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मौजूद है। यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जब हम लिखते हैं एक FPO के लिए, उसमें मौजूद है, उसको जोर देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज ABPU, कृषि व्यापार योजना इकाई जो है हर FPO में, उसको विकसित किए हम। IAHR ने उसको हैंड होल्डिंग किया, ट्रेनिंग दिया। मैं आपको काफ़ी फोटो, देखो ये लोग थे उस पूरा FPOs के ट्रेनिज को IAHR में काम किया था। ये रही बिल्डिंग, अमर नारायण तोटगारिका रहित उत्पादक कंपनी IAHR से संवर्धित, ओके। और ये रही बिल्डिंग, देखो इसके सामने इनपुट भी है, आउटपुट भी है, और ये बिल्डिंग भी उसका नहीं है, ये बिल्डिंग भी रेंट पे लिया है। और देखो दे ऑल्सो हैव ए कस्टम हायरिंग सेंटर, दे हैव डाइवर्सिफाइड, ये हल वल सब कुछ, हल मोटर, ओके, ऑल दिस स्प्रेयर्स रेंट पे देते रहते हैं, किसानों की सेवा भी करते हैं। और देखो दे हैव ऑलरेडी गॉट ए लाइसेंस फॉर ऑल दिस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके। एंड ये रही सुधा मैसूर, मेरी कोलीग, जो उस जमाने में काम था। आजकल ये आइडिया में अग्री इनोवेट, ये दिल्ली में CEO बन के बैठी है। शी इज ए PhD इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बहुत खास तौर से शी इज ए हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, जो ये सब BPD और इसकी CEO थी पहले। आजकल डॉक्टर CK नारायण है CEO हमारे बिजनेस प्लानिंग डेवलपमेंट यूनिट का, जो इंक्यूबेशन सेंटर IAHR में है, ही इज डूइंग। अर्लियर डॉक्टर सुधा मैसूर वॉज डूइंग इट। और पूरा डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, इनपुट इज ऑल्सो सप्लाइड, ओके। एंड देन लुक एट, एक देखो हमने इस FPO को, इस शॉप में एक कंप्यूटर भी लगाया पूरा। वी स्ट्रक्चर द डेटाबेस एंड देन एंटायर सेल्स एंड रसीद जनरेशन टेक्स प्लेस बाय दिस। ये आधुनिकीकरण का एक है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इस FPO को चुना। और इसमें मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि IAHR का काफ़ी योगदान है इसमें, और इसीलिए मैं इस और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको चुना स्टडी करने के लिए। और जो भी थॉर्नटन का ये है, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरी टाइम बढ़ गया, अभी 12:40 हो रही है मेरी वॉच से। और रेयार साहब बहुत गुस्से में हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा समय लूँ तो। और ये कस्टम हायरिंग सेंटर, और देखिए एवरीथिंग इज सोल्ड हियर, आप फोटोग्राफ देख लीजिए। और काफ़ी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी है, और डे ओल्ड चिक्स भी दे सेल हियर। एंड दिस इज द फोटोग्राफ, शेयर सर्टिफिकेट। और आप आने वाले दिनों में सरवान सिंह साहब, मैं देख रहा हूँ विजुअल में, इकबाल कौर है यहाँ विजुअल में, रियार साहब, महाल साहब, ओके। और मैं आप सबको तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मौका दिया। और IAHR की कोशिशें, या मैं अभी 2 स्लाइड बाकी है, मैं ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो रियार साहब ऑलरेडी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। सर मैं 10 मिनट के ऊपर नहीं लूँगा सर, मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। और आने वाली दिनों में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर ऑल माई पार्टिसिपेंट्स, जो 67 FPOs पंजाब में मौजूद है, उसके लिए आने वाले दिनों में क्या करना है। पहला है ABPU का संस्थापन करना है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। संस्थापन क्या करना है? ABPU कृषि व्यापार परियोजना इकाई को स्थापन करना है, विच इज अ थिंक टैंक इन एवरी FPO को कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया जाए ये बता देगा। और इसमें आपको स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, कोई फोन कर रहा है सर, 1 मिनट। हाँ ಹೇಳು ಶಶಿ, ಹೇಳು। ಹೌದು, OTP ರಿಟರ್ನ್ ಏನದು? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡು, ಒಂದು OTP ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ ಬಾನು
ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳಿಸು. ಹೌದು, ಅದು ಯಾವ ಓ ಟಿ ಪಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸು, ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಟಿ ಪಿನ. ಯಾವುದೋ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು? ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಅದೇ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಓ ಟಿ ಪಿನಪ್ಪ ಅದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿಯೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿಯಪ್ಪ. ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಪಿ? ಅಲ್ಲ ಅದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳಿಸು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ತೀನಿ. मैं आने वाली 2 स्लाइड में यही बताऊंगा आपको अपनी 67 FPOs को आगे कैसे लेके जाना है. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये अंग्रेजी में बोलते हैं. सुनने आए तो फोन इड़प्पा ಒಂದು ನಿಮಿಷ. वे फॉरवर्ड इज आप स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्शियम से आप संपर्क कर सकते हैं. मैं एक बुक भी दे दूंगा और इसका नंबर भी इधर मौजूद है. और ग्रांट थॉर्नटन, दिस इज द कंपनी, चंडीगढ़ में भी इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस दिल्ली में है. यहाँ देखिए नेशनल ऑफिस कनाट सर्कस में है, हाउसकास में. ओके, और ग्रैंड थॉर्नटन का 15 ऑफिसेस है पूरे भारत में. और चंडीगढ़ में मैं आपको फ़ोन नंबर भी दिया हूँ. ओके, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़, आप इसे संपर्क कीजिए. दे विल एस्टैब्लिश दी ABPU फॉर यू. दे विल एस्टैब्लिश दी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. और मैं मैप भी दिया हूँ. ग्रैंड थॉर्नटन हयात रेजेंसी चंडीगढ़, ये कहाँ है भाई? इसके बगल में है, ये देखो राज साहब, ये चंडीगढ़ में है. कहाँ? हयात रेजेंसी, इसके बगल में है ग्रैंड थॉर्नटन, ये कंपनी है. इससे संपर्क कीजिए. हाँ, ओके. सो आप इस पे संपर्क कीजिए. दे आर गोइंग टू हैंड होल्ड एंड डेवलप द ABPU अग्री बिजनेस प्लानिंग यूनिट. ओके, बेंगलुरु में भी है. सो आखिरी में, अंत में, ये अंत नहीं है मित्रों, ये शुरुआत है हमारी रिश्ते का, हमारी ये टेक्निकल समझौते का. और IAHR और PAU लुधियाना का जो ये तकनीकी संबंध है, ये आने वाले दिनों में और भी मजबूत हो जाए और IAHR को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और हम भी आपकी सेवा में लग जाए, यही उम्मीद करता हूँ. और ख़ास तौर से रियाज साहब को, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, मैं उसको धन्यवाद, आभार हूँ. और महल साहब और कुलदीप साहब से, क्योंकि वो हेड है एक्सटेंशन का, आने वाले दिनों में बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स आएंगे. आप कृपया मुझे मेंबर बना दीजिए, मैं उसको रगड़ के रख दूंगा. कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन, मोबाइल एक्सटेंशन पे काम करो बेटा. आई एम गोइंग टू टेल यू. फार्म एंड होम विजिट वो चली गई. कुलदीप साहब और मेरे ज़माने का एक्सटेंशन थे फार्म एंड होम विजिट. आजकल नोबडी इज गोइंग टू डू फार्म एंड, पूरा मोबाइल पे आती है. मैं दिखा दूंगा आपको मोबाइल पे कैसे डेवलप करें. कुलदीप जी एंड मी विल गाइड द स्टूडेंट. लेट हिम डेवलप 1 or 2 मोबाइल ऐप्स. किसानों की सेवा में क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे एंड्रॉयड पर डेवलप करो, iOS पर डेवलप करो. आजकल सिर्फ नए लड़के हैं, नए बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे लोग. चाहे हम तो बूढ़े हो गए 57 का, फिर भी सीख रहे हैं. आजकल के जवान लड़के फटाफट MIT ऐप इन्वेंटर निकाला, एंड्रॉयड स्टूडियो निकाला, अरे बैक एंड पे PHP MySQL निकाला, फट हो गई. अरे टुडे मैं मैनेज में भी कंसल्टेंट हूँ, वहाँ भी मैं वही बोलता हूँ कि मोबाइल एक्सटेंशन पे काम होनी चाहिए. वही एक तरीका है, हमारी तरक्की उस दिशा में जानी चाहिए बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्टलेस एक्सटेंशन. ये कोरोना जाएगी नहीं जाएगी मुझे तो पता नहीं है. ओके, मान लो कि रहेगी तो क्या हम 320 मिलियन टन का उत्पाद नहीं किया क्या? हमने 300 मिलियन टन का नहीं किया है क्या? अरे जिंदगी चल रही है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, एक्सटेंशन से चलेगी, आने वाली दिनों में भी चलेगी. अरे बाढ़ आए, तूफान आए, मौसम बदले, क्या एक्सटेंशन बदलेगी? नहीं, एक्सटेंशन अपनी तकनीकी बदलेगी, अपनी रणनीति बदलेगी. और हम किसानों की सेवा में हमेशा यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से. हम देंगे साथ. आज चले हैं हम हमारे तकदीर को खुद लिखने, कोई गर्दिश के तारे पे हम
समझौता नहीं करेंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद। और अब नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। और रयार साहब, मैं 10 मिनट ज़्यादा लिया, आप बुरा मत मानिए, मैं 10-15 मिनट ज़्यादा बस। थैंक यू। या नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन सर। अभी सभा। यस सर। थैंक यू डॉक्टर B.K. Rao ji for nice presentation how to link FPOs with market. और ये और डॉक्टर साहब 1 मिनट, ये चंडीगढ़ में जो ऑफिस है, अगर आपको पता है तो एक बार विजिट कर दीजिए। एंड दे विल और PAU के साथ वो लोग दे विल मेक ए गठबंधन, दे विल सर्विस ऑल योर, थोड़ा चार्ज लेंगे वो, यू कैन वर्कआउट। बट चंडीगढ़ के ऑफिस में जरूर जाना, जरूर। Rao sir, we have already visited along with our IT startups. हाँ। Yeah. Okay. And I also welcome Dr. Ramchand, Assistant Director, Former Assistant Director General. ICR, Dr. Ramchand ji is here. ओ रामचंद साहब, आई नो रामचंद जी। ओके, नमस्ते करता हूँ इधर से। हाँ, नमस्ते सर। That's all is here. So now I request Dr. Dani is here. Dr. Sudeep Dani. Yes, good afternoon, sound here. Very good. That's all. Anything you want to share regarding this our topic, how to link our FPOs with marketing, and anything you want to clear from Dr. Rao, please. Thank you, sir. Good afternoon, all. I think it was a very informative lecture by Dr. Jayaraj Rao, because he has given all the details regarding how to link FPOs with the markets. And very aptly he has pointed out that business plan is the most important element, because in case of FPOs, normally we focus merely on creation of FPOs, but sustainability of FPOs is more important. And sustainability is absolutely hinged on the quality of the business plan. Because the proper business plan is not in place, because in the management we see that who do not plan, they are planning to fail. So in case business plan is not in place, then the way forward for FPOs is very difficult. And right here is pointed out that we need to work very closely with the existing FPOs, and we should be encouraging farmers to pool their resources in form of creating new FPOs. And here I would like to share my experience related to one of the projects that we recently did with the help of the Department of Processing and Food Engineering, because I come from School of Business Studies. When we talk about market linkages, so just for information of the speaker of the day, so what we did, we contacted farmers in district Gurdaspur, and we procured marsh crop from them, what we call as Urd dal. And we procured that Urd dal at rupees 60, that was the minimum support price. And we graded it, we packaged it, we labeled it at PAU with the help of Processing and Food Engineering Department. And we were able to sell it at rupees 90 a kg, and it was sold like hotcakes. And if I look at the market price of the same product, because it was an unpolished premium product, the market price was say something like rupees 130 plus. So even by selling it at rupees 90, we could make profit of around 20%. So what I want to convey here is that there are a lot of opportunities available by which we can link farmers with the market. And in the process, all stakeholders are going to benefit. Now, in this case, in case of marsh crop, not only farmers benefited, but also the consumers benefited in terms of low price and assured quality. So it's only about finding the missing links and ensuring that those links are bridged. And I suppose the suggestion that come from the third speaker will help us in taking the same initiative forward. That is helping FPOs to work better and state of the art. Thank you very much, sir. Thank you very much, Dr. Dani. How to add the value? So value chain, Dr. Rao has already mentioned in their presentation how to link FPOs and farmer interest groups and other farmer bodies like club and associations with the marketing.
and the only way is how much you are adding in their product, and other term we can say value addition, so that increase their income, and how you are getting maximum income from that product. And Dr. Ramandeep is here. Dr. Ramandeep. Okay, Dr. Gurdeep Singh, Deputy Director KVK Mansa. Dr. Gurdeep Singh. So Dr. Rao, I have one question, or I have one query. Yes, sir. Yes, sir. How we can link our agri startup, because we have Punjab Agriculture University is running a Punjab Agri Business Incubation Center also, and we have 42 agri startups, and at the same time funded by ICR. Okay. Okay. About 3 crore rupees, I said that awarded, funded to our agri startup. Yes. And how we can link our agri startups with the FPOs, or another word we can say with niche areas, because we have 40 different niche areas in Punjab. ओके सर, ओके रियाज साहब से के प्रश्न पे ये उत्तर थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। से देखिए, जो ऑलरेडी आपके इंक्यूबेशन सेंटर है लुधियाना में, हाँ या ना है, इंक्यूबेशन सेंटर इज इन प्लेस, एंड देन बाद में आप उस स्टार्टअप्स का डीपीआर यानी जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है उसको कैसे इवैल्यूएट किए हैं, या बहुत कठिनता से, या ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स might not have got marks on the economic feasibility, market feasibility. So there are 4 or 5 types of feasibility in the detailed project report. There's a market, देखो every feasibility has got technical feasibility. ठीक है, हमने मशरूम प्रोसेसिंग शुरू की है, मान लीजिए मशरूम प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास जगह है, मेरे पास बिजली है और सैनिटेशन का जो भी है, लेबर है, सर टेक्निकली इट इज फीजिबल, बट इकोनॉमिक फीजिबिलिटी को कौन स्टडी किया है और मार्केट फीजिबिलिटी का कौन स्टडी किया है। सो मैं आपसे अनुमोदन करता हूं कि एक बार इस ये थॉर्नटन वाले, वो कहाँ है भाई, ये ग्रैंड थॉर्नटन फेलोज जो चंडीगढ़ के ऑफिस में हैं, उनको एक गेस्ट लेक्चर पे या एक कंसल्टेंसी मोड पे, ओके, यू कैन रिक्वेस्ट योर वाइस चांसलर से आप आग्रह कर सकते हैं, तो यू कॉल देम, लेट देम इंटरेक्ट विथ योर इंक्यूबेशन सेंटर ऑफिशियल्स। सी कभी कभी क्या है डॉक्टर साहब, हर कला की श्रृंखला मेरे पास ही नहीं होती, आई हैव टू ब्रिंग पीपल, आई हैव टू ब्रिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉलेज। सो देखेंगे, और सी लेट देयर बी, सपोज आपके पास मान लो कि 100 स्टार्टअप है, लेट अस analyze their detailed project report for feasibility. We will put all the ratio analysis, return on investment, दुनिया भर का, and let them give a presentation whether those fellows can market the product. जब marketing ही नहीं है उसका, तो हम ऐसा बढ़ोतरी क्यों दे? Of course, don't criticize me and say that मैं बहुत कठिनता से बात कर रहा हूँ. But what I am saying is, see, जैसे it is like our Indian cricket selection. अगर हम एक ऑर्डिनरी फेलो, जैसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में हमारे 4 बंदे जाके ऐसे सबक सिखा के आए हैं जो इतिहास गवाह है, इतिहास की पन्ने पे लिख दिए. सो वी वांट आवर स्टार्टअप्स टू परफॉर्म नॉट बाय नंबर. हमें ये नहीं बोलना है कि मैंने ये किया वो किया, बट अल्टीमेटली व्हेन देयर इज नो फीजिबिलिटी, ओके, then they should be rejected and it should be closed. I am of that opinion. आप अच्छे स्टार्टअप एक 5-6 करो जो PAU लुधियाना को विजिबिलिटी लाती है, और you will also become the number 1 startup in the country. See, there is nothing like that
सी क्या कोई गारंटी है कि ओनली IIM कैन प्रोड्यूस द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स? इज देयर एनी गारंटी दैट ओनली मैनेज और नियाम विल प्रोड्यूस? एवरीबडी कैन प्रोड्यूस इफ यू टेक टफ स्टैंड, यू कैन प्रोड्यूस द बेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड. भारत देश की खूबी वही है सर, हमारे 133 मिलियन पॉपुलेशन में एक नहीं दो नहीं, कोई एंटरप्रेन्योर की कमी ही नहीं है, कोई स्टार्टअप की कमी नहीं है. हम खाली नंबर दिखाने पे हमारी उत्पादकता नहीं दिखानी है, हमके क्वालिटी, दे शुड परफॉर्म, दे शुड बी सस्टेनेबल. ऐसा स्टार्टअप को हम करें. आप ये थॉर्नटन वालों को भी बुला दीजिए. यू कैन कॉल पीपल फ्रॉम नारम. डॉक्टर रंजित कुमार है जो बिजनेस प्लानिंग यूनिट वहाँ चलाते हैं, और डॉक्टर कोंडपी जी आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है जो IPR सेल में बैठता है दिल्ली में. ही वॉज ऑल्सो अवर CEO ऑफ द BPD यूनिट एट नारम. और मैनेज में मेरा काफ़ी दोस्त है. वी विल कॉल ऑल ऑफ देम. सी दिस इज अ फ्री सर्विस, डोंट थिंक दैट दे विल चार्ज. अरे दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इशू. वी विल कम फ्री ऑफ कास्ट. यू नीड नॉट वरी. मैं IIHR से डेप्यूट होके मैं आऊँगा. माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर है मैनेज में, डॉक्टर रंजित कुमार है नारम में. IIM से भी काउंसिल है वहाँ. एक विजय पाल सिंह है, ही इज ऑल्सो अवर, ही इज अ प्रोफेसर एट IIM. वो अग्री सेक्शन में ही है. विथ वसंत गांधी ही इज देयर. He belongs to the 90 RS. He is my batchmate. We will bring the people. Let us study what are those startup. कितना sustainability है, क्या उसमें दम है या नहीं है? देखे जरा जिसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. So I think ये गाना बहुत मशहूर है. आप इसको लागू कर दीजिए और देखते हैं दंगल दंगल सूरज तेरा. सर हम ऑलरेडी, जैसे आप जो गाना का है, हम ऑलरेडी लागू कर रहे हैं. तो लाइक वी हैव आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव बीकीपर एसोसिएशन डॉक्टर चंदी साहब, मिस्टर चंदी भी साथ में जुड़े हुए हैं, सरवण सिंह चंदी जी. साहब कुछ कहना चाहोगे? कुछ अरे चंदी साहब नमस्कार. पहले अरे आपका दर्शन हुआ, बहुत सौभाग्य की बात है. थैंक यू सो मच. आपको बहुत बहुत नमस्कार. इंग्लिश को पूरी समझ जितना भी समझ पाया. अरे भाई नहीं हम बीच बीच में हिंदी में भी बोले हैं, तो क्या दिक्कत कहाँ आई थी आपको? नहीं इसीलिए मैं रियाज साहब से आग्रह वही किया था सर, मैं इस पूरी प्रवचन हिंदी में ही कर दूंगा. चलो चल ठीक है सर, बताइए. हाँ डॉक्टर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे पंजाब में आपने 67 FPO बोले हैं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में नौजवानों के बीच, किसानों के बीच पोटेंशियल है एग्रीकल्चर को ऊपर ले जाने के लिए, अपनी कृषि को मार्केट देने के लिए. लेकिन बात यह है कि बात यही फंस जाती है कि जो कोई फार्मर मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, कोई डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो FPO बनाने वाले अधिकारी होते हैं, उसका खेती से कोई वास्तव नहीं होता, उसको जानकारी नहीं होती. जब वो FPO बनाने आते हैं तो कहीं से इतने डाल देते हैं तो फार्मर वो कंडीशन से बाहर ही नहीं जाता है. लेकिन मैं आपसे ये एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अभी FPO बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा 2000 से ग्रोथ कर रहा है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस ग्रोथ के अंदर ही जो हम काम कर रहे हैं उसको भी FPO में कन्वर्ट किया जा सके या उसको ये दी जा सके. तो मैं FPO बनाऊंगा, उसमें कई कंडीशन हो जाएगी, कोई बंदा उसमें आएगा नहीं आएगा. एक और कंडीशन है, देखो हम सभी को तो साथ लेकर नहीं चल सकते, तो फिर आज का समा पंजाब का वो ऐसा है कि भाई के साथ भाई भी नहीं चल सकता. लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे हमने लोगों की जो ग्रुप बना रखा है, हाँ ठीक है, ग्रुप में और हमारे मेंबर नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ चलते हैं. ऐसे हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि PAU से जो फार्मर जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं,
वो हमको देखो पीएचडी तो पूरी जारी करती है, लेकिन रूट लेवल पर जब फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल हमको चाहिए तो फाइनेंशियल रहेगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कल भी हमारे एक फार्मर कपूरथला में मक्की यूनिट शुरू करके रहे हैं, तो 700 रुपये क्विंटल में करते रहे थे, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वो तो खर्चा भी हमारा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ग्रुप हो, ऐसी हो, ऐसा कोई हो, जैसे बड़े बड़े कारपोरेट अदारे हैं, उसको सरकार जो जहाँ आदमी पैसा देती है, तो एफडीए कोई ऐसे लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया जा सकता जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिले, वो इनकम का सोर्स बन जाए। क्योंकि मक्की यूनिट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमारी जो मक्की में जा रही है, क्या जब दिल्ली जो है शिमला में पूरा सीमित साइकिल जिसको बोलते हैं, हमारे सुल्तानपुर में भी एकड़ में 500 एकड़ लगती है, डेली 100 गाड़ी जरूर में आती मजदूर निकलती है, लेकिन जमीन हमारे को फूड प्रोसेसर का इंडस्ट्री नहीं है, तो 3 रुपए किलो हमारे से जो व्यापारी है मिला रहा है। आगे जो प्रश्न है उसको बोली 50 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन जमीन आगे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते मार जाते हैं, तो जो इसकी कंडीशन होती है कि 3-4 कथा करो तब हम आपको कमर्शियल फोन करेंगे। मेरी यही प्रश्न है कि देखो 10,000 का बैठे और भी एक्सपर्ट बहुत सारे बैठे हो, हमारी सरकार का तो आप भी सरकार है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर को सरकार ही ऊपर रखाया जा सकता है। खासतौर पे पंजाब में जो पहली पंजाब का पानी का सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वृद्धि फायदी हो सकती है, हमने की है, लेकिन मार्केट में आप आकर के तभी काम खराब हो जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फार्मर घोषित भाई कर लेगा, पहले से पीछे हट जाएगा, बढ़िया क्वालिटी की बात में कीजिएगा, और भी कई वेजिटेबल फ्रूट्स या और भी कई प्रोडक्ट हैं जैसे बीज है, मशरूम है, डेयरी है, टर्मरिक है, ओनियन है, गार्लिक है। पंजाब के फार्मर ने क्या नहीं प्रदर्शन किया, लेकिन मार्केटिंग में आके बात खराब हो जाती है, जो विटोरिया है तभी वो खा जाता है। तो आपसे यही मेरा दोबारा आग्रह है कि जो ग्रुप पहले ही लगे हुए हैं, देखो लोकल लेवल पर कोई ग्रुप एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर पर है, उनको तो फार्मर के बारे में पता ही होता है। जैसे हम कर रहे हो उसको पता नहीं होता है, तो क्यों नहीं इसको प्रमोट करते। अच्छा, नहीं मैं समझ गया। मैं थोड़ा आपका उत्तर देने की प्रयास करता हूँ। देखिए अभी RKVY रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार का मतलब क्या है? रैपिड रिजुविनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। इसका मतलब यह है पहले भी राष्ट्रीय किसान विकास योजना थी जो 6% की बढ़ोतरी पे चल रही थी, ग्रोथ पे, अभिवृद्धि पे, संवर्धन पे। बट नाउ जब रफ्तार आई है, मेरा स्टूडेंट एंड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स एट मैनेज, एक डॉक्टर शर्वानंद राजे जो RKVY रफ्तार का प्रोजेक्ट चलाता है। जब तक आप सुनिए मेरी बात, जब तक मार्केटिंग फीजिबिलिटी नहीं है, जब तक मैं मेरा प्रोडक्ट को, मेरा उत्पाद को मैं बेच नहीं पाऊंगा, तब मुझे कितना हैंड होल्डिंग करे। मान लीजिए इट इज बहुत एक एग्जाम्पल देने, मरीज को कितना चिकित्सा करोगे? मान लीजिए मैं यहाँ कठिन नहीं हूं, उन मरीज को चिकित्सा किया जाएगा जो रिकवर हो जाए, जो जल्दी ही विल कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड एक अच्छी खुश नसीबी की जिंदगी जिए। अगर मरीज खाली लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे ही कितने साल तक चलाएगा, कितने साल ICU में रखेगा? हमारे FPOs के बारे में भी मैं वही बोलूंगा। आप मुझे टेक्निकल फीजिबिलिटी दिखा दिए, वो सब अलग है, मुझे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी दिखाइए, मुझे आप आमदनी दिखा दीजिए, मुझे मुनाफा दिखा दीजिए, मुझे आपका कम लागत, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने लागत 1 रुपए की है और मेरी मुनाफा आ रही है 50 पैसे की। ये नहीं चलेगा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट
₹1 का इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम ₹1 तो मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रिटर्न एंड मार्जिनल कॉस्ट। जितनी लागत उतनी आमदनी। ओके, अगर आमदनी नहीं है तो ऐसा प्रोजेक्ट को हम क्लोज करना चाहिए। देखिए, दोस्ती अलग बात है सर। अगर कौवे का बच्चा बहुत पसंद है, बट पूरा दुनिया कोयला को मानती है, कोयल को, ठीक है ना। जब कोयल गाना गाती है, वो भी काला है, ये भी काला है, बट दुनिया कोयल को मानती है। कोयल बोले दुनिया बोली। ओके, ऐसा है। तो हमारा उत्पाद जो है वो मार्केट में बिकनी चाहिए। अगर नहीं बिकेगी तो उत्पाद क्यों करे, नहीं करना है। मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, ये इमोशन से नहीं चलेगा सर। देखिए, मैं यहाँ खाली एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ के तो बात नहीं कर रहा। मेरा पूरा 35 इयर्स का अनुभव, मैं इसको संस्करण करके इसमें ये अमृत के प्याले में डाल के मैं आपको बोल रहा हूँ। जो भी मेरा मार्केट फिजिबिलिटी नहीं है, बेहतर है उसको बंद ही कर दो। सो इसीलिए आपके पास राया साहब है और पूरा PIU लुधियाना का एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, स्टार्टअप है। आप कृपया अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिखाइए और दोबारा स्टडी कीजिए। और एक पायलट स्केल में मान लो कि आपका प्रोजेक्ट एक 100 करोड़ का है, तो मान लो एक 10 लाख में एक छोटी स्केल पे करके आप उसको बेचना शुरू कीजिए। देखेंगे बेचते अगर पायलट स्केल पे, जैसे जो कोई भी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आने के पहले उसको क्या है, रणजी टेस्ट मैच खेलता है मोहाली में, रणजी मैच में अच्छा किया तो ठीक है, देखो कोई वनडे टेस्ट मैच पे उतरेगा। और बाद में वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे, जैसे आपके विराट कोहली साहब है, ही इज अवर कैप्टन। सो विराट कोहली जी एक कोई ऐसा नहीं आया है, बहुत कड़ी परिश्रम से, कठिन सिलेक्शन से, ओनली परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। बिना परफॉर्मेंस के विराट कोहली कुड नॉट हैव बिकम द कैप्टन। अरे भाई, वहां बड़े बड़े मौजूद थे, कपिल देव और धोनी, एक नहीं दो नहीं। देखिए, दुनिया बल पे चलती है, दुनिया चुनौतियों से चलती है, दुनिया इम्तिहान से चलती है सर। और कोई भी इम्तिहान, चुनौतियां को अगर हम पार नहीं कर पाएंगे, मैं असमर्थ हूं, मुझे मानना पड़ेगा और मुझे खुद वहां से हटना होगा। तो यही है सर, लोग माने या ना माने, ये दुख की बात है। हैंड होल्डिंग कैनॉट बी डन अनलिमिटेडली। हैंड होल्डिंग विल बी डन ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स। हमारे बच्चों को भी 18 साल तक हैंड होल्डिंग किया जाएगा, बाद में दे आर ऑन देयर ओन। जब शादी भी करते हैं तो क्या डॉक्टर राव, या बेसिकली हैंड होल्डिंग इज स्लो पॉइजनिंग। राज साहब, आपने इतना सीधा दिल पे क्यों बोल दिया यार? लोग बुरा मानेंगे आपको, लोग आपको बुरा मानेंगे। तो जल्दी साहब ने जो आई थिंक बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेकंड बैच, थर्ड बैच चंदी साहब ने अंडर अपाबी अवतार अप्लाई किया है। तो होपफुली इन्हां दा DBR एंड और प्रोजेक्ट चंगा होवे तो इन्हां में पैसे मिलेंगे। सो we have Dr. Ramchand. Dr. Ramchand, you would like to share something here? Dr. Ramchand? Am I audible, please? Yes sir. Yes sir. Actually, मेरे को आज का ये वेबिनार सुन के इतनी खुशी हुई है कि पहले तो मैं डॉक्टर माल साहब, डॉक्टर रियाज साहब, डॉक्टर कुलदीप सिंह और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने दिल से कि राव साहब ने एक्चुअली जो भी बातें करी हैं वो एज ए एक्सटेंशन प्रैक्टिशनर करी और 35 साल का जो उनका तजर्बा है उन्हीं इस लेक्चर में लगा दिया है और इतनी एग्जाम्पल दी हैं और उसने वाकई हमारे को शेर ही बना दिया। अच्छा, बिल्ली से शेर। आज हम वाकई शेर ही समझ रहे हैं अपने आप को
क्योंकि आपने इतना इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और जो आपने मॉडल जो आजकल के स्टूडेंट को जहाँ स्टाफ को सजेस्ट करे हैं वो बहुत ही बढ़िया लगे हैं, मतलब क्योंकि आपकी जो थिंकिंग बहुत फॉरवर्ड है और आपने जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी डीप नॉलेज दी है। इवन मैं भी कल जब से करीब का मेरे को ये मैसेज आया था तो मैंने भी गूगल पर पढ़ना शुरू करा था इसके बारे में, क्योंकि मेरी नया सब्जेक्ट था। पर राव साहब, मैं आपको अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आपने इसको इतना उदाहरण एग्जाम्पल के साथ मतलब लेक्चर दिया है कि ये याद रहेगा। और मैंने भी कुछ नोट्स अपने नोट डाउन करे हैं। नहीं, मैं पूरा ये 200 स्लाइड में आपको दे रहा हूँ। मैं रियाज साहब को एक बुक भी दे दूंगा, ये आज ही शाम को शेयर करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने की है इसको भी शेयर करता हूँ। डोंट वरी, किसी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ज़्यादा दोबारा नहीं करना चाहता हूँ कि राव साहब ने बहुत ही सादे ढंग से मेरे को एजुकेट करा है, अपनी नॉलेज शेयर करी है। और मैं राव साहब को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं राव साहब फर्स्ट बैच ARS हूँ 1976 का। ओह वेरी गुड यार, मैं सुपर सीनियर। PhD कहाँ से की थी आपने? आप IRA में की थी क्या PhD? PhD मैंने NDRC से करी। नहीं, काफी पब्लिकेशंस में मैं पढ़ा हूँ। रामचंद्र, अच्छा आप वही रामचंद्र, थोड़ा आप दर्शन तो दे दीजिए, थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए। आपका दर्शन हो के हम बहुत धन्य हो जाएंगे। हाँ, मैं आपके पब्लिकेशंस पढ़ा हूँ। हाँ, और 5-6 साल से मैं ADG KVK था। ये मुझे पता है सर। आप अच्छा, बस आपका दर्शन हो गया। 1 मिनट सर, आप वीडियो ऑन करिए ना मेरे भाई। हाँ, ये सो नाइस रामचंद्र साहब, सो नाइस ऑफ यू। मैं सो नाइस ऑफ यू। मैं आपके पूरे पब्लिकेशन जो भी आप इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में छपे थे मैं पढ़ा हूँ, और मैं इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का एडिटर भी हूँ। थैंक यू सो नाइस। सभी को गुड विशेस और मेरी बधाइयां बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। और कुलदीप सिंह मॉडल बनाते रहेंगे। और मेरी तहे दिल से सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नहीं, रामचंद्र साहब का दर्शन करके मेरा जिंदगी धन्य हुआ है। थैंक यू सर, सो नाइस। Thank you very much for sharing the nice word, Dr. Ramchandra ji. So now I, on behalf of the Accredited Extension Education, Punjab Agricultural University, Ludhiana, thanks a lot, Dr. V.K.J. Rao ji, for sharing the valuable remarks and nice presentation with our participants. Thank you very much. Thank you all. Thanks a lot. थैंक यू सर, धन्यवाद। मिलते रहेंगे सर, 700 जन्म तेरे मिलते रहेंगे हम, बस। थैंक यू। कैसे किया जाए भाई? स्टॉप से